Hello students, today we are doing topic surface tension formula list from board's pattern point of view. Let's get started. बेटा सबसे पहले we are doing type 1 basics of surface tension. Now the basic formula of surface tension T is equals to F divided by LC. Correct है? Surface tension T is equals to F divided by LC. Students, this T is obviously surface tension. F is force due to surface tension. LC का मतलब होगा length in contact between the solid surface and the free surface of the liquid. That means students, the SI unit of surface tension can be considered as Newton per meter. Yes, and there is one more unit students, Joule per meter square. बेटा मैं SI CGS यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि surface tension has got total two SI units. Number one is Newton per meter, number two is Joule per meter square. रेगुलर लेक्चर में हमने पढ़ा है जूल पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, बट स्टिल आपको मालूम नहीं है. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपको बता दूंगा व्हेन आई कम टू टाइप 2. ओके, फॉर्मूला याद किया बच्चों ने, T is equals to F divided by LC. Students, what can be the dimensional formula of surface tension? It is m raised to 1, l raised to 0, t raised to minus 2. Yes, surface tension T का फॉर्मूला रहेगा F divided by LC. Now what can be the different values of LC जो आपको पूछ सकते हैं बच्चों. तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए. For different shape of object, what can be the different formulae for length in contact. Okay. So students, अगर हमें क्वेश्चन में बोलेंगे there is thin wire और there is a needle, length in contact होगा 2 times of L. What is L? Length of needle या फिर length of thin wire. What is 2L? Length in contact. Students, because दोनों तरफ नीडल के या फिर थिन वायर के लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेंगे दोनों सरफेस, दैट इज L plus L and that's why मैंने यहाँ पे लिखा है 2L. Okay students, if there is circular plate, length in contact will be circumference of circle which is 2 pi r. R is obviously the radius of the circular plate. Okay, but if there is circular loop, if there is circular ring, can I say अंदर बाहर दोनों तरफ कांटेक्ट पड़ेगा. So 2 pi r twice, that means 4 pi r. Yes, but आप समझे कि नहीं, जो थिकनेस है ये रिंग का वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस सेम है. सर अगर रेडियस सेम नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, वो अपने को यहाँ पे करो. यस, राइट नाउ जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस सेम है. सो लेंथ इन कांटेक्ट होगा सर्कुलर लूप या फिर रिंग के लिए 4 pi r. बेटा नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर प्लेट, length in contact will be 2 times of L plus B. Correct है? Basically this is perimeter of rectangle. What is L? Length. What is B? Breadth. So 2 times of L plus B. Now students, rectangular frame अगर होगा तो हम जानते हैं कि अंदर बाहर दोनों तरफ कांटेक्ट बनेगा. So this will be 2 times of 2, that is 4 times of L plus B. Next, square plate. So perimeter of square होगा बेटा 4 times of its side, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 4a. What is a? स्क्वायर का एक साइड, चार साइड इक्वल है, so length in contact will be 4 times of a. If it is square frame बेटा, so 4a बाहर 4a अंदर, so total will be 8a. आप समझे ना बेटा कैसे करना है? Yes. Students, next is ट्यूब और रिंग, पर डेटा में आपको दो रेडियस दिए गए. That obviously means कि यहाँ पे आपको थिकनेस कंसीडर करना होगा. अगर हम डायग्राम की बात करें, इट्स समवट लाइक दिस. बेटा दिस पोर्शन विल बी सॉलिड पोर्शन. यस, लेट्स से अंदर का जो रेडियस है वो r1 है, जो बाहर का रेडियस है वो r2 है. थिकनेस आपको यहाँ पे दैट मींस डेफिनेटली कंसीडर करना है. सो आप करोगे LC का फॉर्मूला 2 pi multiplied by r1 plus r2. दैट मींस स्टूडेंट्स 2 pi r1 अंदर वाले सेक्शन के लिए एंड 2 pi r2 बाहर वाले सेक्शन के लिए. तो टोटल LC हो जाएगा 2 pi, हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में r1 plus r2. Are you following this stuff? Yes. This is discussion about type 1 formula related to basics of surface tension. Guys, next is type 2, जिसे हम कहते हैं relation between surface tension and surface energy. जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे that looks like this. dW is equals to T times of dA. What is T? Obviously surface tension. What is dA? Change in free surface area.
What is dw? Surface energy. What is dw? Surface energy. बेटा कहना है से P का फॉर्मूला होगा dw divided by dA. dw is surface energy. What will be the unit? Joule. dA change in free surface area. What will be the unit? Meter square. तो हो गया ना बेटा जूल एंड इसका मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन का एक और ऐसा यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर. कन्विंस्ड? ओके स्टूडेंट्स, dw is t times of dA. in this formula मैंने देखा है मेनली दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके तो सब हेडिंग ए होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ. फर्स्ट इज ड्रॉप. Students, for a drop it will have only one free surface. करेक्ट है? सो ड्रॉप का फ्री सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल. स्टूडेंट्स इन केस ऑफ सोप बबल इट विल हैव टोटल 2 फ्री सरफेसेस. तो इसका फ्री सरफेस एरिया होता है 8 पाई आर स्क्वायर. करेक्ट है? स्टूडेंट्स इन आवर रेगुलर थ्योरी लेक्चर्स हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्यों होता है डायग्राम के साथ. और पता है आपको याद कैसे रखवाया था मैंने आपको? फॉर सोप बबल द फ्री सरफेस एरिया इज डबल. सिंपल टर्म्स में फॉर बबल द सरफेस एरिया इज डबल. फॉर बबल द सरफेस एरिया इज डबल. बट माइंड यू इट शुड बी सोप बबल. एयर बबल हुआ तो स्टोरी अलग है. बट फॉर सोप बबल डेफिनेटली द फ्री सरफेस एरिया इज 8 पाई आर स्क्वायर. लेट मी रिमाइंड यू बेटा, अगर एयर बबल होता है so it will have only one free surface क्योंकि उसके सिर्फ अंदर की तरफ एयर होगा. एंड फॉर सोप बबल दोनों तरफ एयर है, इसलिए मैंने आपसे कहा it will have total 2 free surfaces. Are you following this बेटा? Student, this is the diagram for drop. It will have how many free surface? One. बाहर वाला, बाहर ही तो एयर है. For soap bubble students, बाहर अंदर दोनों तरफ एयर है, इसलिए मैंने आपसे कहा it will have total 2 free surfaces. That's why free surface area होगा 4 pi r square का डबल, that is 8 pi r square. करेक्ट है स्टूडेंट्स? एयर बबल का डिस्कशन हम अलग से एक टेबल में कर लेंगे आफ्टर सम टाइम. ये फिलहाल आपको समझा बेटा? ओके. सब हेडिंग बी स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ अ ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स or formation of a drop by combination of droplets. Yes, ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स यहां पर there will be one single drop. Okay, let's say it falls from some height एंड आपको बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलते हैं. करेक्ट है? ये छोटे छोटे ड्रॉप को हम नाम दे रहे हैं बेटा ड्रॉपलेट्स. आई एम शोइंग ओनली 3. रियल टाइम वर्ल्ड में डेफिनेटली इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स एक ड्रॉप टूटा एंड आपको ड्रॉपलेट मिले, या फिर ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन हुए एंड आपको ड्रॉप मिला. करेक्ट है? इट इज द टू मेन फॉर्मूले जो हम बोर्ड एग्जाम में एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं. वो है फर्स्ट इज बेटा रिलेशन बिटवीन दोनों रेडियस. कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज़ टू 1 by 3 इनटू स्मॉल r. बेटा कैपिटल R का मतलब होगा रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड स्मॉल r का मतलब होगा रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट. n is definitely the number of droplets. So this is the relation between radius of the drop and radius of droplet. करेक्ट है बेटा? एंड स्टूडेंट्स एंड इसमें पूछते हैं dw, that is इसमें पूछते हैं what is the change in surface energy, how much energy is absorbed, how much energy is released. तो इसमें बेटा dw का फॉर्मूला आता है सॉल्व करने के बाद 4 pi t is the surface tension multiplied by n small r square minus capital R का स्क्वायर. डेरिवेशन किसी को चाहिए तो बेटा प्लीज आप रेगुलर जो अपना लेक्चर हुआ था रिकॉर्डिंग उसको देख लीजिए. बट राइट नाउ वी आर डूइंग फॉर्मूले लिस्ट वन शॉट, तो मैं मेनली फाइनल फॉर्मूले पे फोकस कर रहा हूं. आप समझ पा रहे बच्चों? टाइप 2 रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी dw is equal to TdA के दो सब टाइप हो गए बेटा, A एंड B. यस. देन बेटा हमारे पास है आपके लिए टाइप 3 शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस. So I have taken total 2 cases.
बेटा इन केस नंबर 1 I have shown drop of water on solid. As you can see, it is not a complete sphere क्योंकि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिला है बेटा वो वाटर जैसे लिक्विड के लिए अक्यूट मिला है, करेक्ट है. एंड सेकंड केस इज एक्चुअली अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑन सॉलिड सरफेस. यहाँ पे आपको बेटा कंप्लीट स्फीयर मिलने वाला है बिकॉज जो थीटा होगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट शुड बी ऑब्ट्यूस, करेक्ट है. यहाँ पे क्या दिखाना है, अक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पे क्या दिखाना है, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट. केस 1 केस 2 वाटर मर्क्यूरी रेस्पेक्टिवली. आर यू फॉलोइंग दिस रूल्स? यस बेटा. द गुड पार्ट इज केस 1 हो या फिर केस 2 हो, इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, जो हमें फॉर्मूला मिलता है cos थीटा का, वो दोनों के लिए सेम है. cos थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स T2 minus T1 divided by T3. Guys, this is the formula valid whenever there is formation of drop. Cos theta is equal to T2 minus T1 divided by T3. But what is T1? Force due to surface tension between solid liquid interface. अच्छा, what is T2 बेटा? Force due to surface tension between liquid air interface. What is T3? Force due to surface tension between solid air interface. Are you following this बेटा? आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सेकंड डायग्राम में भी ये टर्म्स का नाम वही रहेगा बेटा. What is T1 students? Force due to surface tension between solid liquid interface. What is T2? Force due to surface tension between liquid air interface. What is T3 बेटा? Force due to surface tension between solid air interface. Yes, formula of cos theta will be the same in all the cases. Cos theta बेटा T2 minus T1 divided by T3. Yes, finish your test. Students, now we are doing type 4, concept of excess pressure, also called as Laplace law for spherical membrane. बेटा पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ that always pressure on concave side is greater as compared to pressure on convex side. Correct students? Yes. Concave side का pressure will always be greater as compared to convex side का pressure. तो यहाँ से स्टोरी ये बनता है स्टूडेंट्स, whenever there is a spherical membrane, let it be a drop, let it be a bubble, what happens is from inside it is concave and from outside it is convex. And हमेशा concave side का pressure convex से ज़्यादा है, मतलब हमेशा pressure inside will be greater as compared to pressure outside. करेक्ट है बेटा. ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है Pi minus Po, pressure inside minus pressure outside, we denote that by delta P, and sir delta P का नाम होता है excess pressure. करेक्ट है स्टूडेंट्स. डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Pi minus Po. ओके गाइस, we'll start with drop. This is diagram of a drop. हम देख पा रहे स्टूडेंट्स, ये बाहर एयर के साथ कांटेक्ट में है, that means it has got only one free surface. For a drop students, excess pressure delta P होता है 2T by R. T is definitely surface tension जिससे drop बना हुआ है and R is radius of this drop. Okay. What about soap bubble? Students, in case of soap bubble, अंदर बाहर दोनों तरफ air है. So this has got total 2 free surfaces. That means यहाँ पर excess pressure delta P होने वाला है double 2T by R का डबल, that is 4T by R. Okay. Next, बेटा एयर बबल में दो वैरायटी आ सकता है. Now this air bubble, सबको याद तो है ना बेटा एयर बबल क्या होता है? A bubble which is present inside the liquid is air bubble. So दो वैरायटी कैसे आ गया सर इसमें? बेटा as you can see, this bubble is just below this liquid का surface. तो ये जो डेप्थ है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सर क्या हमें हमेशा डेप्थ नेग्लेक्ट करना है? जरूरी नहीं है, वो आप क्वेश्चन में देख लेना. अगर आपको बोलते हैं देयर इज एयर बबल जस्ट बिलो, यू कैन नेग्लेक्ट. इफ इट इज वेल बिलो, यू हैव टू कंसीडर बेटा. तो फिर यहाँ पे हमारे हाइड्रोस्टैटिक्स का जो प्रेशर का नॉलेज होता है वो भी बड़े काम आ जाएगा बेटा. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इक्वल्स टू H rho g. ओके. तो बेटा दिस एयर बबल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, ऐसा कह सकता हूं मैं. तो यहाँ पर डेल्टा P होगा, आप बताइए पहले 2T by R या 4T by R? It will be students 2T by R. क्यों? It has got only one free surface. अंदर वाला ही एयर के साथ कांटेक्ट में है स्टूडेंट्स.
दो होते सो डबल के तरह, तो 4t/r सिंगल फ्री सरफेस है, सो डेल्टा p विल बी 2t/r। करेक्ट है स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? बेटा ये जो एयर बबल इट इज प्रेजेंट वेल बिलो, तो यहां पर डेल्टा p इज इक्वल टू 2t/r तो होना ही है, प्लस ये जो आपको प्रेशर ड्यू टू दिस मच लिक्विड कॉलम दिख रहा है वो भी ऐड अप हो जाएगा। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम स्टूडेंट्स? h rho g। करेक्ट है? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टाइप 5 एंड हमारे सरफेस टेंशन का लास्ट टाइप, कैपिलरी एक्शन आल्सो कॉल्ड एज कैपिलैरिटी, the phenomenon of rise or fall of a liquid inside the capillary tube when it is dipped inside the liquid is called as capillarity, also called as capillary action. So students, यहाँ पर हमारे पास जो h का फॉर्मूला है that looks like h is equals to 2t cos theta divided by rho r g. You understand? Beta, what is t? Surface tension. What is theta? Angle of contact. What is rho? Density of the liquid. What is r? Radius of the capillary tube. What is chotu g? Acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. What is h beta? H is rise of liquid inside the capillary tube. Be very serious in listening this. बेटा मैंने h को क्या नाम दिया? राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। बहुत बार बच्चे बोलते हैं h का नाम होता है राइज और फॉल। बेटा डेफिनेशन में ठीक है आपने बोला, बट h का नाम क्या? फॉल बोला है क्या? नहीं, h इज राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अब मैं इसको फॉल क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा इसमें यूजुअली हमारे सामने दो केसेस आते हैं। केस 1 इफ थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, कौन सा लिक्विड आएगा बेटा? एग्जांपल के तौर पे वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास। बेटा मैं प्योर वाटर नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर, वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास। सो थीटा इज अक्यूट, थीटा विल बी लेसर देन 90 डिग्री। दैट मींस स्टूडेंट्स, व्हाट इज cos थीटा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस बेटा, यू आर क्वाड्रेंट नंबर 1, सो cos थीटा विल बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। सो h भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बेटा व्हाट इज h का नाम? राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, एंड वो h आपको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। दैट मींस सच में जो लिक्विड है वो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होने वाला है। और हम जानते हैं बेटा वाटर जैसा लिक्विड जो सॉलिड को वेट करता है दैट इज गोइंग टू राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। करेक्ट? कम टू केस 2। स्टूडेंट्स केस 2 में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एग्जांपल होगा बेटा यहाँ पे मर्क्यूरी। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है मर्क्यूरी का, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। सो क्वाड्रेंट वाइज अगर हम बात करें, थीटा बेटा 90 से बड़ा है, डेफिनेटली 180 से छोटा ही रहेगा। ठीक है? सो क्वाड्रेंट नंबर 2 में यू आर, सो cos थीटा कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? टेल मी। नेगेटिव, लेस देन 0। तो बेटा अगर cos थीटा नेगेटिव है तो h भी कैसा होगा? नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। स्टूडेंट्स h का नाम बताइए? राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। एंड सर जो h है वो नेगेटिव है, मतलब जो राइज है वो नेगेटिव है, मतलब सही मायने में जो लिक्विड है वो फॉल कर रहा है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। सो स्टूडेंट्स जो लिक्विड है वो क्या करेगा? फॉल करेगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? वाटर क्या करेगा? राइज करेगा। मर्क्यूरी क्या करेगा? फॉल करेगा। h का फार्मूला 2t cos थीटा अपॉन rho rg। h का नाम राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। Yes, beta, this is one short revision of formula list of a chapter surface tension. I am confident कि आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेगा. Thank you.